Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello, my dear students. Assalamu alaikum. Hope you are all in a hearty over there at your homes and you are enjoying your lives. So, today we are going to deal with the prescribed questions in your textbook. You have been given the comprehension part B. Here you have been given some lines out of the text and you are supposed to read these lines as it is written in the sentences. Read these lines from the text and answer the questions that are given below. So first of all, you have been given a line, keeping a good lookout. Good lookout एक अच्छी नज़र रखते हुए. I ran across the open spaces. Ran across means run away या run from the spaces, open spaces यानी खुली जगह से between the thorny bushes या thorn bushes कांटेदार जो झाड़ियाँ वहाँ से वो दौड़ता है. Now you have been asked two questions. The question number 1, A part is, was grandpa afraid of the ostriches? How do you know? Now the answer is yes, grandpa was afraid of the ostriches as he kept a good look on the ostriches so that he could not spot him. Sorry, they could not spot him. यहाँ पे I have skipped writing why, so that they could not spot him, because you have already read in your book that the male ostriches are generally aggressive. When they spot someone, they might feel afraid of somebody. They get quickly aggressive in their behavior. So this is how we know, because he kept an eye. उसने एक नज़र रखा था. The second question is, what is the mood in the text that at this point? At this point, what was the mood? The mood is scary and humorous at the same time. Scary means डरावना, थोड़ा सा डर लग रहा था, and humorous यानी मज़ाहिया था, मज़ा था उसमें, यहाँ आसपास. At the same time, the description of grandpa running across the open spaces is funny. जो डिस्क्रिप्शन यानी जो लिखा गया है ग्रैंडपा के बारे में कि वो जो खुली जगह है वहाँ से दौड़ रहा था, इस फनी, वो बड़ा मज़ा था. एंड द डिस्क्रिप्शन एंड द एंटिसिपेशन ऑफ समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन. एंटिसिपेशन क्या होता है? होप ऑफ समथिंग, कुछ होने का, रॉन्ग गलत होने का जो था, इज गोइंग टू हैपन, समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन विथ द ऑस्ट्रिचेस इज स्कैरी, कि इन ऑस्ट्रिचेस के साथ कुछ गलत होने वाला है. तो वो क्या था? डरावना था. ठीक है, ये हो गया आपका दो क्वेश्चंस. नाउ यू हैव बीन गिवन द another part of the comprehension in the same part, B part. You have been given some lines once again. I don't know how, मुझे नहीं पता कैसे, but I found myself holding on to one of the creature's wings. ठीक है, क्रिएचर के, उस क्रिएचर मखलूक को कहते हैं, मखलूक के एपिस्ट्रोफियस लगाए तो काकी के, क्रिएचर्स विंग्स, उसके किसी पर को पकड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता कैसे. इट वॉज नाउ द ऑस्ट्रिच टर्न. अब ऑस्ट्रिच की बारी थी टू बी फ्राइटन, कि वो डर जाए. ही बिगेन टू रन मूविंग राउंड, वो दौड़ना शुरू कर देता है. मूविंग राउंड एंड राउंड, तो घूमना ही शुरू कर देता है. एंड सो क्विकली, राउंड एंड राउंड, सो क्विकली, बहुत तेज़ी से, दैट माई फीट वेयर सून स्विंगिंग आउट फ्रॉम हिज बॉडी. आई वॉज ऑल्सो स्विंगिंग, मैं भी झूल रहा था उसकी बॉडी के साथ साथ, क्योंकि वो ज़ोर ज़ोर से घूम रहा है. क्योंकि आपको बताया था कि द बर्ड इज़, some of the birds are almost 9 feet in their heights. तो 9 feet होता है, वो इतना ऊंचे होते हैं. तो ये बर्ड को पकड़ लिया था, इसके विंग्स को, तो ये घूमना शुरू कर देता है. अब क्वेश्चन क्या पूछा है? Why did the bird get frightened? क्यों डर गया? अब देखो, इसमें देखो सेकंड पार्ट, grandpa got hold of one of the ostrich wings. अब ग्रांडपा ने क्या कर दिया था? अचानक से ऐसे ही उसके एक पर को पकड़ लिया था. That made the ostrich frightened. इस वजह से क्या कर दिया उसने? उस ऑस्ट्रिच को डरा दिया. अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है, What happened? क्या हो गया था to grandpa when the bird began turning round and round? अब उसने घूमना ही घूमना शुरू कर दिया, तो क्या हो गया था ग्रैंडपा को? ठीक है, sorry, I haven't written this question, B part. अब क्या हो गया है?
what happened to grandpa when the bird began running round and round? ये सेकंड क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर देखिए. when the bird began to go round and round so quickly, जब तेजी से वो घूमने लग गया, grandpa was soon swept off his feet. अब sweep का पास swept off है, यानी उसे ज़मीन से बिल्कुल जैसे कि कोई झाड़ू मारता है बिल्कुल उस तरह उड़ा के swept off, ज़मीन से उठा लिया उसको his feet. जल्दी वो भी अपने कदमों से उखड़ गया, उसके कदम ज़मीन पे नहीं थे. and his feet were swinging out from the ostrich's body, और उसका बॉडी जो है, उसके जो पैर हैं वो झूल रहे थे उस ऑस्ट्रिच के बॉडी से, इसे साथ में घूम रहे थे. ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका इसमें. नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ योर आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स इज द सी पार्ट इन योर कॉम्प्रिहेंशन. नाउ व्हाट हैपेंस राइट आफ्टर ग्रैंडपा एंटर्स द केम. नाउ ठीक है, क्या हो गया था जब ग्रैंडपा उस केम के अंदर दाखिल हो गया, तब क्या हुआ. What happens, क्या हुआ है. राइट आफ्टर ग्रैंडपा एंटर्स द केम, जब वो एकदम से दाखिल हुआ है. तो अब देखिए क्या बोल रहा है. ग्रैंडपा wants, अब सिंपल प्रेजेंट रखा है, wants to go across the came as fast as possible, जितना तेज हो सके जाना चाहता था. so he keeps an eye, अब वो नज़र रखता है, keeps है, s लगा हुआ है, an eye on the whereabouts of the birds. whereabouts का मतलब है कि वो birds कहाँ जाते हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर नज़र रख रहे हैं. feeding at some distance, जो कुछ दूर खा रहे हैं या चुग रहे हैं. he runs across the open spaces between the bushes, वो दौड़ता है कहाँ से, जो open spaces है जो bushes के बीच में है. suddenly grandpa's dog, अचानक उसका कुत्ता spots a hare, एक खरगोश को देखता है, एंड स्टार्ट्स चेजिंग इट, और उसका पीछा करना शुरू कर देता है. स्टार्ट्स, ये सारा सिंपल प्रेजेंट रखा है. द बार्किंग डॉग एंड शाउटिंग्स ऑफ ग्रैंडपा अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द बर्ड्स. अब क्या हो जाता है, कुत्ता भौंक रहा है और इधर से ग्रैंडपा चिल्ला रहा है, तो उसकी वजह से वो तवज्जो जो है, अटेंशन जो है उस बर्ड्स का वो अट्रैक्ट करता है, यानी उनकी तरफ खींचता है. एंड दे स्टार्ट रनिंग टू एंड फ्रो, और वो बर्ड्स क्या करना शुरू कर देता है, टू एंड फ्रो, इधर उधर दौड़ना शुरू कर देता है. अब उसी वक्त क्या होता है, ए मेल ऑस्ट्रिच स्टेयर्स एट ग्रैंडपा, स्टेयर्स यानी उसकी तरफ देखकर घूरता है, एंड चार्जेस एट हिम, सीधा उसके ऊपर आता है, अटैक करता है. किस तरह से, लिफ्टिंग हिज शॉर्ट विंग्स, अपने छोटे पर को ऊपर उठाते हुए, एंड होल्डिंग हिज टेल इरेक्ट, अपने दुम को सीधा रखते हुए वहाँ पे आ जाता है. ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या हुआ, इसने पूछा कि जो ही क्या हुआ है जब ग्रैंडपा एंटर हुआ. सेकंड क्वेश्चन पूछा, हाउ डिड ग्रैंडपा एंड अप इन ए क्लम्प ऑफ बुशेस. अब क्लम्प ऑफ बुशेस यानी बुशेस, जो झाड़ियों का एक ग्रुप है, उसमें कैसे वो आखिरकार एंड अप मतलब पहुंच जाता है उसमें. ठीक है, अब देखो, ग्रैंडपा स्टार्टेड रनिंग एट फुल स्पीड, बट वो तेज दौड़ना चाहता है, बट ही कुड नॉट मैच द ऑस्ट्रिचेस स्ट्राइड्स. अब आपको बताया था स्टार्टेड, ये सिंपल पास में है क्योंकि उसने पास में पूछा हाउ डिड, तो कैसे हुआ, तो स्टार्टेड रनिंग एट फुल स्पीड, तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है. बट ही कुड नॉट मैच, मगर वो मैच नहीं कर सकता था, किस चीज़ के साथ मुकाबला नहीं कर सकता था यहाँ पे, तो ऑस्ट्रिचेस स्ट्राइड्स, स्ट्राइड्स होते हैं बड़े बड़े लंबे लंबे कदम जो है. तो ग्रैंडपा वांटेड टू गेट बिहाइंड ए लार्ज बुश ओनली टू हाइड फ्रॉम द बर्ड. वो चाहता था, वांटेड देखो पास में लिखा है, टू गेट बिहाइंड, पीछे हो जाए किसके, ए लार्ज बुश, बड़े से झाड़ी के पीछे हो जाए, सिर्फ टू हाइड फ्रॉम द बर्ड, ताकि वो बर्ड से छुप सके. ही रश्ड फॉरवर्ड, इसलिए वो आगे की तरफ तेजी से दौड़ता है, एंड एंडेड अप इन ए क्लम्प ऑफ थॉर्नी बुशेस, और कांटेदार बुशेस के पीछे वो बैठ जाता है, वहां पर पहुंच जाता है. ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन. द थर्ड क्वेश्चन यू हैव बीन गिवन हियर, डिस्क्राइब हाउ ग्रैंडपा एंडेड अप ऑन द ग्राउंड एंड व्हाट द ऑस्ट्रिच डिड नेक्स्ट. अब ये ग्राउंड पे कैसे गिर गया, आखिरकार पहुंचा, और इस बर्ड ने क्या किया था. द बर्ड वॉज सून अपॉन ग्रैंडपास हेड, जल्दी ही बर्ड जो है वो उसके सर पे पहुंच गया था. ग्रैंडपा स्ट्रगल्ड फ्रेंटिकली, फ्रेंटिकली यानी अनकंट्रोलेबली, अनकंट्रोल यानी बिल्कुल जिसमें कंट्रोल नहीं था, क्योंकि वो बड़े दौड़ रहा था, और एक बर्ड जो एक घोड़े से तेज दौड़ता है तो ऑब्वियसली अनकंट्रोल होगा. ग्रैंडपा स्ट्रगल्ड फ्रेंटिकली अनकंट्रोलेबली लिख सकते हो आप, टू अवॉइड द डेडली किक, यानी ये जो फैटल, जो मौत हलाक कर देगा उसको, ऐसी किक से बचने के लिए वो अनकंट्रोलेबली कोशिश कर रहा था. ग्रैंडपा स्टार्टेड सर्कलिंग ए बुश, अब उसने दौड़ना शुरू कर दिया, घूमना शुरू कर दिया बुश के
इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया, टू एस्केप इट, उससे बचने के लिए। ही, उसने क्या किया, सम हाउ यानी किसी तरह, काउट होल्ड ऑफ वन ऑफ द विंग्स ऑफ द बर्ड। अब किसी तरह उसे पता ही नहीं कैसे, अचानक से उसने उसके बर्ड का जो है एक विंग पकड़ लिया, एंड स्टार्टेड स्विंगिंग अराउंड एज द बर्ड टर्नड, और वो भी झूलना शुरू हो गया। जैसे ही वो बर्ड मुड़ना शुरू कर रहा था तो वो भी स्विंग करना शुरू कर दिया उसने भी, यानी वो उसके बॉडी के साथ घूम रहा था। द बर्ड वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, अब वो बर्ड भी डर गया था। एंड सडनली रिवर्स इट्स मोशन, और अब पता है आपको, एकदम से उसने मोशन को रिवर्स कर दिया। डेट अनएक्सपेक्टेड मूव, यानी जो उसकी उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा हरकत करेगा, मूव मेड ग्रैंडपा लॉस्ट हिज ग्रिप, उसने उसके पकड़ को क्या कर दिया, ढीला कर दिया, लॉस, ठीक है, लॉस्ट हिज ग्रिप, अपना जो उसने पकड़ रखा था वो ढीला हो गया। एंड ही एंडेड अप ऑन द ग्राउंड, और वो कहाँ पे गिर पड़ा, जमीन पे गिर पड़ा। ठीक है, ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन यू हैव बीन आस्क्ड हियर, हाउ डज ग्रैंडपा फाइनली एस्केप फ्रॉम द ऑस्ट्रिच एंड लीव द कैम्प, कैसे बच गया वो, एस्केप होता है बच जाना बर्ड से, एंड लीव द कैम्प, और कैम्प छोड़ के कैसे गया। तो यहाँ पे आफ्टर ग्रैंडपा फेल ऑन द ग्राउंड, गिरने के बाद, द बर्ड वॉज रेडी टू स्ट्राइक हिम राइट ऑन हिज फेस विद द फैटल किक। अब डेडली किक उस तरफ बोला था, ये फैटल भी लिख सकते हैं। जो ही एक ग्रैंडपा जमीन पर गिर गया था, बर्ड बिल्कुल तैयार था उसको जोर से उसके चेहरे पर मारने के लिए, वो जोरदार जो हलाक करने वाला किक मारने के लिए। इन द मीन वाइल, इसी दौरान, समथिंग फ्राइटेंड द बर्ड, अब किसी चीज़ ने उसको, इसी दौरान किसी चीज़ ने डरा दिया उस बर्ड को। एंड इट शार्पली टर्न्ड इट इज हेड टूवर्ड्स द लेफ्ट, जिसमें लेफ्ट साइड की तरफ उसने सर मोड़ दिया। सून इट जम्प्ड बैक, जल्दी ही वो जंप बैक यानी पीछे की तरफ जंप किया। एंड रन एज फास्ट एज इट कुड, जितना तेज वो दौड़ सकता था उतनी तेजी से दौड़ गया, दौड़कर चला गया। ग्रैंडपा वंडर्ड व्हाट काउज्ड इट गो बैक, ग्रैंडपा हैरान हो गया कि किस चीज़ की वजह से ये वापस गया है। इट वॉज हिज डॉग, ये उसका कुत्ता था, हु हैड कम टू हिज रेस्क्यू, जो उसको बचाने के लिए आ गया। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन आंसर पार्ट ऑफ द book. Hope you have enjoyed it. We'll continue your class in our next classes, inshallah.